A new low-budget Indian film focusing on the exodus of thousands of Hindus from disputed Muslim-majority Kashmir region has won accolades from Indian Prime Minister Narendra Modi and is proving a box office hit. The Kashmir Files, a 170 minutes Hindi language movie released last week, tells the fictional story of a student who discovers his Kashmiri Hindu parents were killed by Islamist militants and not in an accident, as his grandfather told him. Supporters of the movie, set during both the violent upheaval of 1989-90 and the present day, say it shines light on an often overlooked chapter of Kashmir's history. Critics say it is loose with the facts and fan anti-Muslim sentiments. Modi on Tuesday praised the movie, saying it showed the truth and that vested interests were running a campaign to discredit it. They are shocked that the truth that was hidden for so many years is out and is backed by facts, Modi said, without clarifying to whom he was referring to. A state leader from Modi's Bharatiya Janata Party gave government employees a half day off to go and see the movie. Since opening on Friday, the movie has gone from being shown on 400 screens nationwide to 3,000 screens. But not everyone agrees, however, with some seeing the film as evidence of the growing religious polarization Modi's critics say he has fostered since coming to power in 2014. The state machinery propping up the film and the reaction to it is disappointing, Hussain Haidari, a screenwriter who works in Bollywood, told Reuters. As a Muslim, you feel a sense of despair that movies like The Kashmir Files are encouraging and adding to Muslim hate in the population. Watch the excerpts from the interview with the makers of the film at ITV Gold Studio. और कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, एक्चुअली आप पूरा अगर इंडियन कल्चर और इंडियन जो फिलॉसफी है वो पूरी तरह से कश्मीर से ड्राइव होती है. जैसे यहाँ पे हार्वर्ड है या सिलिकॉन वैली है जैसे आपकी, तो यूँ समझ लीजिए कश्मीर पहले मिलेनियल की सिलिकॉन वैली थी. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉलिटिक्स के कारण पार्टीशन के बाद से अभी तक वहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो एक आम इंसान को भारत में या भारत के बाहर पता नहीं है. लोग कहते हैं कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और भूल जाते हैं. तो इसका 4 साल से रिसर्च करते 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 हमने जो ट्रूथ, इसका जो है लोगों का जो दर्द है, जो वहाँ का रियल प्रॉब्लम है, वाई कश्मीर इज़ सो इंटीग्रल टू ह्यूमैनिटी, वो निकाला. तो फाइल्स की मैं सीरीज़ ही है, ताशकंद फाइल्स हिट हो गई तो मैं ट्रिलॉजी ये बना रहा था. तो इसलिए कि कश्मीर का जो असली सच है, सच्ची कहानी है, वो आपको इस फिल्म से पता चलेगी. नहीं, इसलिए क्या कि मैं चाहता हूँ कि जो कश्मीर का मुद्दा है, देखिए आज जेरूसलम, व्हाट जेरूसलम इज़ टू इज़राइल, एवरीबडी नोज इन अमेरिका. एवरीबडी इन अमेरिका. एक मूवी बनी होटल रुआंडा, तो रुआंडन जेनोसाइड के बारे में सबको पता चल गया. आर्मेनियन जेनोसाइड के बारे में अमेरिका में सबको पता है क्योंकि वो उसके ऊपर मूवी बनी है. इंडिया में आज तक कश्मीर को लेके कोई मूवी नहीं बनी थी और कश्मीर को सब एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बोल के छोड़ देते थे. सो आई थॉट कि इसको एक ग्लोबल लेवल पे शुरू यहाँ से किया जाए रिलीज़ के पहले, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं यूएसए के, जो यहाँ का इंटेलिजेंसिया है, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, वो इसको समझें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. This I'll have to take you through a little bit of the research that we had done. In 2019 जब ये हमने मूवी शुरू की थी इस रिसर्च करना, so we of course wanted to connect with a lot of Kashmiri Pandits and understand their stories. So we reached out to the first generation victims and their families. तो 2019 में हम लोग यहाँ पे आए थे and जिस तरह से वॉर ट्रिब्यूनल्स जो किए जाते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यूज़, वैसे कश्मीर को लेके कभी किसी ने किए नहीं थे. इनफैक्ट 2014 से पहले तक कश्मीरी पंडित इशू इतना बड़ा है हमारे देश में, ये बहुत से लोगों को पता भी नहीं था. तो वी कनेक्टेड विद there's a huge Kashmiri Pandit community settled in USA. So we connected with them, we came here. और जो इंटरव्यूज़ हमने शुरू किए और ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियाँ लोगों की निकली है बाहर, मैं आपको बता नहीं सकती. एवरी डे वी वर कंडक्टिंग 4 to 5 इंटरव्यूज़ और एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं था जिसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फूट फूट के रो नहीं पड़ूंगी. और जब एट द एंड ऑफ दैट मंथ एंड अ हाफ इतनी स्टोरीज इकट्ठा हो गई हमारे पास और एकदम से ये मुझे
एहसास हुआ इस बात का कि पिछले 30 सालों से इन लोगों को जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, जस्टिस तो मिली ही नहीं है, लेकिन किसी ने इनकी कहानी सुनी तक नहीं है। और कश्मीर को हमारी इंडियन फिल्मों में इतना ग्लोरीफाई किया था 60s और 70s में कि हर रोमांटिक गाना कश्मीर में है जी। हर हीरो हीरोइन चाहते थे कि एक ना एक गाना उनका कश्मीर में हो, लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की शुरू हो गई, सबने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे वो भारत का कभी था ही नहीं। तो हमने कहा कि दिस इज़ आवर ड्यूटी। कश्मीरी पंडित क्या भारतीय नहीं है जी। तो अगर ये कहीं ऐसा हादसा कहीं गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में, भगवान ना करे, लेकिन ऐसे कहीं किसी और स्टेट में हो, तो क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हमने कश्मीरियों को क्यों छोड़ दिया? तो ये फिल्म बननी चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने हमें नरेट किया है वही सारे इंसिडेंट्स इस फिल्म में आने चाहिए। तो ये रिसर्च का हमारा एक पार्ट था, एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो टर्निंग बैक, क्योंकि ऐसी कहानी मुझे नहीं लगता पहले किसी ने बताई है, और अगले कुछ सालों में शायद ही कोई इस तरह की फिल्म बनाएगा कश्मीर पे। बहुत अच्छी बात आप लोगों की बातें। ये पहली बार आपने कहा कि कश्मीर फिल्म आपको कैसा लगा, डर नहीं लगा या समथिंग? राइट। I just want to know why. Why in the name of Kashmir we all react? Because we react because of some conflict, something. I don't look at it that way. I look at it as a film. मुझे जब स्क्रिप्ट आई मैंने पढ़ा, it is not only about Kashmiri Pandit, it's about humanity. राइट। It is about the moderate Muslims, it's about Sikhs, it's about Christians, it's about Hindus, all been affected by this. And I give credit to Vivek for one thing, that his study, he's always been very well read person. इतना पढ़ा है, इतना रिसर्च करता है। जब मैंने पढ़ा तो मैंने मतलब पहले ही कहा था कि देख, you want me to, that I want you to be part of this film. इन्होंने एक कहानी लिखी जिसमें उसने जान दी है, प्राण दिया है। हम एक्टर्स, हम उसको पढ़े, हम उस करेक्टर को हमने जान दी। अभी मेरा यहाँ आना, ये सफ़र इनके साथ करना, कि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इस पिक्चर को देखे, और उन लोगों की जिम्मेदारी है वो कितना प्राण डालते हैं इस पर। आई टोल्ड यू, आई एम एन एक्टर। जब डायरेक्टर मुझे सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ, आई परफॉर्म, मैं प्राण डालता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा काम है आप तक पहुँचाना जी, और उसके बाद मुझे देखना कि आप लोग सब जो फिल्म देखेंगे उसमें कितना प्राण डालते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हाउ मच वी सक्सेसफुल वी आर, हैव वी रीच्ड योर हार्ट और वी हैवंट रीच्ड योर हार्ट। मेरा इसमें जैसे ताशकंद फाइल मैंने की थी, किरदार की बात करें, आई हैव ए, you can call it a very just a special appearance kind of thing, but the character is very interesting, very dramatical moments are there, but because of Vivek, because I understand by Vivek, I think आप मुझे जो भी समझना है समझ, I think मेरे भारत का one of the best directors मैं उसको मानता हूँ मैं। very nice। इतना पढ़ाई है इसकी, इतनी इसकी मेहनत है, हर चीज़ को छोटी, ऐसे जैसे पल्लवी ने कहा ना, आप पिक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि ये डायलॉग आप कहीं सुन चुके हैं, किसी ना किसी लीडर ने ऐसा कहा होगा, इसने कोई बना के नहीं लिखा है। He is bringing you the truth in front of you, सच्चाई को आपके सामने आके खड़ा कर देगा, और मुझे देखना आप कितना प्राण डालते हैं, क्योंकि उस प्राण के ऊपर ही निर्भर करता है the Kashmir files is justified or not. वेल, विवेक के नाम पे फतवा जारी हो चुका है कश्मीर में। ओह माय गॉड। बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने कश्मीर में जो शूटिंग कर रहे थे हम वो ख़त्म करके हम बम्बई वापस पहुँचे, तब वो हमने टीवी पे सुना। तो मतलब मैं फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ, मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग का। हमारे दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही अभी काम करते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द फिल्म। तो हम चारों लोग वहाँ गए कश्मीर, हम लोग वापस आए, और ये मैंने सुना, लेकिन एक सेकंड के लिए कहीं, यू नो, आई जस्ट फॉर अ मोमेंट आई बिकेम अ वाइफ एंड आई realized that, you know, there is a big threat hanging over our head. But I think Vivek and I had decided one thing, कि एक जो शिकायत ये सारे लोगों को सुनने के बाद जो हमारी है, और जो शायद सारे कश्मीरी पंडितों की है, कि भारत ने उनको इग्नोर कर दिया और हम सब भारतीयों ने उनको इग्नोर कर दिया। तो सिर्फ इसका ढिंडोरा पीटने से तो कुछ होगा नहीं। तो हम दोनों भारतीय होने के नाते हमने ये पहल की है
कि हम ये फ़िल्म बनाएंगे। और अब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो हमने ये फ़िल्म बनाई और मैं चाहती हूँ कि ये एक सिर्फ शायद ये एक फ़िल्म से बढ़ के है हमारे लिए। कहीं पे मैं ये समझती हूँ कि ये शायद इतने सालों का प्रायश्चित है, जो 30 सालों से हमने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कश्मीर के मसले को हमने बहुत ऐसे ही छोड़ दिया कि जैसे हाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ चलती है जी। तो ये कहीं पे एक प्रायश्चित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी भावना है इस फिल्म को लेके, वो फिल्म देखने के बाद हर भारतीय के मन में आए। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, और मैं भारत का एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, इसलिए कि इस दुनिया में जो भी आज प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे टेररिज्म का है, चाहे वो एक्सट्रीम कंज्यूमरिज्म का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, इन प्रॉब्लम्स के जो जवाब हैं वो कहीं इंडियन थिंकिंग में, इंडियन फिलॉसफी में है। और लेकिन वो तभी दुनिया के सामने आएंगे जब हर हिंदुस्तानी विश्व के किसी भी पार्ट में जहाँ पे है वो उस पर गर्व करे और उस चीज़ को दुनिया के सामने लाए। मैं सोचता हूँ कि हर इंडियन एक ब्रांड एम्बेसडर है, और ये जो फिल्म है वो इंडिया का सॉफ्ट पावर है। आज जब योगा सक्सेसफुल है, हम कितना गर्व करते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं जैसे शिंडलर्स लिस्ट थी या इस तरह की। हमने वो कोशिश की है, आप देखिए। अगर आपको लगता है हमने नहीं बनाई है तो आप को शिकायत करने का वो है, लेकिन इसको देखिए। अगर आपको लगता है इट्स एन ऑनेस्ट फिल्म, दिल से बनाई हुई और एक सही प्रॉब्लम को एड्रेस करती है, देन यू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस फिल्म एंड यू टेक इट फॉरवर्ड।